Well, hi there. Warm welcome. You're watching Blueprint Exclusive, and I'm Meghna Dekha. Well, they stood by the roadside in Gujarat, not just as part of a crowd, but as a story waiting to be told. This that you can see behind me, the family of Colonel Sophia Qureshi. They made headlines when they showered petals on Prime Minister Narendra Modi during his roadshow. But beyond these visuals lies a deeper narrative, a much deeper symbol of pride, of patriotism and personal moments that touched the hearts of India. Well, remember, here on Blueprint Exclusive, for the first time when we saw Colonel Sophia Qureshi as well as Wing Commander Vyomika Singh, we did a special show revealing the stories behind these two ladies who fronted that press briefing of the Ministry of Defence and External Affairs Ministry when it came to Operation Sindoor. Tonight, we take it a step further. We are going to tell you about the families behind these ladies who are being hailed as the Betis of Bharat. We are going to go much beyond the headlines, much beyond the petals, and into a conversation about symbolism, about service, and what it truly means when emotion meets leadership in a public moment. Listen into this report just to quickly encapsulate what the day held for the family of Colonel Sophia Qureshi. During Prime Minister Narendra Modi's roadshow in Gujarat today, one family among the cheering crowd stood out. The family of Colonel Sophia Qureshi. As the Prime Minister passed by, they greeted him warmly, with Colonel Qureshi's brother placing his hand on his heart in a gesture of deep respect and showering petals on him. The Prime Minister acknowledged the heartfelt gesture and thanked the family with equal warmth. It was a brief yet touching moment that stood out amidst the grand spectacle, a reminder of the personal connections that transcend the political spotlight. Well, you just got a glimpse of none other than Shaina Qureshi, who is the twin sister of Colonel Sophia Qureshi. In fact, Shaina is joining us here today on the show. Thank you so much, Shaina, for joining us. I know it must have been a very busy day for you, but we are looking at these visuals of you throwing flower petals at Prime Minister Modi, greeting him in Gujarat and also waving towards him. Can you tell us what the day was like? कैसा लगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आपके सामने से उनका कॉन्वॉय निकल रहा था, आपकी फैमिली को देखा गया कि उन्होंने एक्नॉलेज किया, उनकी तरफ उन्होंने आपको नमस्ते भी बोला, वो मोमेंट जरा डिस्क्राइब कर दीजिए. एक्चुअली इट्स अ वेरी ऑनरेबल मोमेंट था वो, जो हमारे लिए कि हम पीएम मोदी जी का वेट कर रहे थे, उनके आने का और रोड शो का. हमें जो है कलेक्टर ऑफिस से इन्विटेशन था मोदी जी से मिलने का और रूबरू होने का, तो ये बहुत बड़ी एक ऑनर की बात है. पर मोदी जी के आने से पहले हम लोग वहाँ पे थे और पहुंचे थे. मैंने देखा कि पूरे के पूरे फीमेल है, मोर देन 45,000 से भी ज्यादा फीमेल वहाँ पे थी, फ्लैग लिए हुई थी और कैप लगाई हुई थी जिसमें ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ था. और पूरा का पूरा माहौल एकदम पैट्रियटिज्म वाला था. पूरे रोड पे जो है पूरे पोस्टर्स से सैनिकों के पीएम मोदी जी के साथ मोटिवेट करते हुए, पूरा एक मतलब देशभक्ति की भावना, एक पैट्रियटिज्म की जो फीलिंग थी, जो मतलब वो ऐसी जगह ही नहीं जा सकती, वो अंदर होती है, हम सबके अंदर होती है, लेकिन मोदी जी को देखते साथ ही वो जो फीलिंग थी, वो प्राउड फीलिंग देशभक्ति वाली, वो बाहर आ गई थी. और जैसे ही मोदी जी आए एकदम सनसनी खलबली सी मच गई, तो हमें पता लग गया कि मोदी जी आ गए. एकदम जय जयकार शुरू हो गई, एकदम पैट्रियटिज्म की भावना शुरू हो गई, एक नहर सी दौड़ गई सबके अंदर में. और जब उनको सामने रूबरू देखा तो माय गॉड, माशाल्लाह, उनका जो फेस में जो तेज था, जो नूर था, जो रोशनी थी, जो वो बहुत ही डिफरेंट थी. मतलब ऐसे लगता था कि साक्षात जो है कोई हमें उद्धार करने के लिए हमारे कंट्री में गॉड ने साक्षात भेज दिया, एक फरिश्ता, एक फरिश्ता भी बोल सकते हैं, गॉड ने ऊपर से भेजा हुआ. एकदम अलग था, मतलब ऐसा चमक मैंने अभी तक देखी नहीं है. बहुत
ज्यादा दूर था। और मोदी जी ने जो है प्रणाम किया, वो कुछ कहना चाहते थे बट इतना शोर था, इतनी आवाज थी, कुछ पता नहीं लग रहा था। हम सब ने फूल बरसाए एकदम, और नमस्कार किया, मैंने तो वेव भी किया। और मतलब बहुत ही अलग मोमेंट था, मतलब उसको वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो हमारे डिफेंस को, आर्मी को जो वैल्यूज दिए, जो इज्जत बख्शी है, जो हमारे सब फैमिली को बुलाया था, और जो और भी वहाँ पे और भी सैनिक थे जो शहीद हुए थे, उनके परिवार भी थे, बहुत सारे लोग थे। मतलब अलग ही फीलिंग आ रही थी कि हाँ, जो सिंदूर का जो बदला ले लिया, जस्टिस की गई है, वो सीरियसली वो टोटली डिफरेंट थी। वो एक वही वही प्राइम मिनिस्टर, वही प्रधानमंत्री कर सकते हैं जो बहुत स्ट्रांग हो, जो अपने आप को आगे रख के अपनी सेना को, अपने पूरे के पूरे देशवासियों को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसा ही हुआ, टेररिज्म के अगेंस्ट में जो एक्शन लिया गया विदाउट कैजुअलिटी, पूरा जो जो दुश्मन की कंट्री में जो भी टेररिज्म था, आतंकवादी थे, उनको उड़ाया गया। ये बहुत ही बड़ा सोचा समझा और प्रिसाइज डिसीजन था हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिसमें उन्होंने 2 फीमेल को चूज किया था ब्रीफिंग के लिए, और पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारे जो नारी सशक्तिकरण, नारी जो है वो जी बिल्कुल बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारा डिफेंस सिस्टम जो हमेशा से जाना जाता है, हमेशा से माना पहचाना जाता है अपने शौर्य के लिए, अपने पराक्रम के लिए, अपने स्ट्रॉन्ग जो है इतना मजबूत है, उस चीज के लिए पहले से ही पहचाना जाता है। और उसको सैल्यूट है हमारे डिफेंस सिस्टम को, मोदी जी को। एब्सोल्युटली बहुत ही मजा आ गया। ये जो मोमेंट था, इसको मतलब वर्ड्स में बयान नहीं किया जाता। जो फीलिंग थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। Well, I totally believe you. It'll be a moment for you to remember for the rest of your life when India saluted. And remember, Prime Minister Modi is the representative, the whole of India, when he did naman to you, when he folded his hands towards you and the family of Colonel Sophia Qureshi. It is the whole of India showing you that respect. But आपने ये बोला, शाइना, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को आपने वेव किया, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया आपको? अब मोदी जी को मैंने वेव किया था, उन्होंने मतलब हाथ जोड़ के ऐसे, मतलब जेस्चर बहुत पॉजिटिव दिया, क्योंकि मुझे लगता है वो हाथ हिला नहीं सकते थे, क्योंकि वो गाड़ी में थे। बट उन्होंने जो जेस्चर वेव किया था, उसका जेस्चर जो है बहुत पॉजिटिव था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। और ये मैसेज सब पूरी कंट्री के लोगों के लिए ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू कि हम आपके साथ हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो एक वेव था, वो जो नमस्कार था, जो विनम्रता के साथ, वो बहुत ही अलग था। वो एक सांत्वना, एक फेयरलेस कंट्री की तरफ इशारा था, और फीमेल को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन का एक जीता जागता उदाहरण था। बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट ही कह रही है, बट इट इज ऑल्सो वेरी सिंबॉलिक। आपके ब्रदर ने जो बोला था, वी आर लुकिंग एट दीज विजुअल्स ऑफ हाउ योर ब्रदर, अभी भी देखा जा रहा है, योर ब्रदर पुट हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, दैट वाज वेरी सिंबॉलिक। उसका मतलब क्या था? वाज इट अ स्पॉन्टेनियस मोमेंट? मतलब वो क्या था? वो जो एक जेस्चर है, पूरा इंडिया में आज उसी की बात कर रहा है। द ब्रदर ऑफ कर्नल सोफिया कुरैशी स्टैंडिंग देयर विद हिज हैंड ऑन हिज हार्ट ग्रीटिंग द प्राइम मिनिस्टर, द सिंबलिज्म बिहाइंड दैट, वो भी समझा दीजिए। उसकी फीलिंग थी, जब उसको मतलब उसका हाथ जब यहाँ पे हार्ट के ऊपर था, उसका मतलब ये था कि मतलब सेटिस्फैक्शन कि आज मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर को देख लिया है। एक ऑनर था, एक रिस्पेक्ट है अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, बहुत ही बड़ा दिल से रिस्पेक्ट था उसका। दिल से ऐसा जेस्चर आता है बहुत ज्यादा। दिल से रिस्पेक्ट था, जस्ट एज दिल से रिस्पेक्ट टुडे गोज आउट टू कर्नल सोफिया कुरैशी एज वेल। बट शाइना, सोफिया तो आपकी ट्विन सिस्टर है, बोलते हैं दैट ट्विन्स आर वेरी क्लोज, इमोशनली, मेंटली दे आर ऑलवेज कनेक्टेड। आपको अब कैसे लगता है दैट शी इज नो लॉन्गर जस्ट योर ट्विन सिस्टर, आज वो भारत की बेटी बन चुकी है? हाउ डू यू कम टू टर्म्स विद दैट? एक्चुअली मेरी जो ट्विन सिस्टर है सोफिया कुरैशी, एक्चुअली मुझे आर्मी में जाना था, मेरा हुआ नहीं, तो मेरी सिस्टर ने हमारी लेगेसी को कंटिन्यू किया। और जब सोफिया के बारे में कुछ भी बोला जाता है तो ऐसा लगता है वो मेरे बारे में भी बोला जा रहा है। आई फील, मुझे अंदर से अपने इंडिविजुअल फील होता है, अब वो मेरी सिस्टर नहीं रही, अब वो पूरी देश की जो है सिस्टर बेटी हो गई है। क्योंकि मैं जब किसी से बात करती हूँ तो मुझे मेरी फ्रेंड्स ही बोलते हैं, अब तो हमारी सिस्टर होगी, तेरे अकेले की नहीं है। मैं कहा ऑफ कोर्स यस। और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि हमारी देश की जो नारी है, जो हमारी देश की लेडीज है, वो फीमेल इतने आगे बढ़ रही है और इतना मोटिवेट करने का पावर रखती है। हमारी कंट्री की जो फीमेल है इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो
पूरी कंट्री को मैसेज बिल्कुल। दे सकती है, पास कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है हमारी कंट्री की जो फीमेल्स के लिए। Absolutely. Big message. She stands today as an icon for the women of India, not just women, for every Indian, I would say. But Shaina, ye bataiye, you must be in touch with your sister Sophia. How is she responding to all of this? उनके बारे में इतना लिखा जा रहा है, इतना बोला जा रहा है. How is she responding to all of this? She is, of course, a disciplined army official of India, which is why I am forced to ask you this question. एक्चुअली आर्मी का कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। वो इन सारी चीजों को इग्नोर करते हैं और अपने अपने डिफेंस के जो प्रोटोकॉल है उस पर चलते हैं। वो इन सारी चीजों से दूर रहते हैं, बाइक से, हर चीज से। वो उनकी दुनिया पूरी अलग होती है। हम जो बाहर होते हैं, सिविल में होते हैं, सिविलियंस होते हैं, वो पूरे अलग दुनिया में जीते और उनका जो तरीका है रहने का, वो सब पूरा अलग है। वो आर्मी के रूल्स फॉलो करती है, पूरी तरीके से आर्मी का रूल्स फॉलो करती है और जो भी उसको मैसेज मिलता है, जो भी करता है, उस तरह से करती है। वो हमसे जो बातें होती है वो नॉर्मल बातें होती है, नॉर्मल तरह की, मतलब जो एक सिस्टर में जैसे बहनों में होती है उस टाइप की होती है। हाँ, लेकिन वो इंस्पायर करती है हमेशा से। मुझे अकेले नहीं, सबको उसने मुझे भी बहुत इंस्पायर किया, मोटिवेट किया है हर टाइम पे, हर जगह पे। तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होती है कि मैं मेरी सिस्टर की ट्विन सिस्टर हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं सबको प्राउडली बोलती हूँ, मैं सोफिया की ट्विन सिस्टर हूँ। और आपकी ट्विन सिस्टर कर्नल सोफिया कुरैशी, द बेटी ऑफ द होल ऑफ भारत नाउ जो बन चुकी है, उनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी आगे आई है दैट शी वाज इन द मिडल ऑफ अ पीएचडी राइटिंग हर थीसिस व्हेन शी गॉट अ कॉल फॉर सर्विस फ्रॉम द आर्मी। क्या था उनमें वो जुनून, कैन यू कॉल इट दिस सेंस ऑफ सर्विंग and putting your Desh before any other ambition that you may have academically, that pushed and propelled Colonel Sophia Qureshi to leave her PhD and join the Indian Army? एक्चुअली हम लोग मेरे जो फैमिली है, मेरे दादा भी आर्मी में थे, मेरे पापा भी आर्मी में थे, मेरी सिस्टर भी आर्मी को कंटिन्यू कर रही है। मुझे भी आर्मी में जाना था बट मेरा हुआ नहीं। तो हमारे जो दादी की परदादी 4th जनरेशन दादी थी, तो उसमें भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ उन्होंने जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो हमारी दादियों की दादियाँ जो थी वो हमें किस्से सुनाया करती थी। किस्से ही नहीं, वीर गाथाएं बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वीर गाथाएं सुनाया करती थी। और किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, किस तरह से जो हौसले बुलंद थे, किस तरह से एक फीमेल जो है कैसे लड़ती थी, सब कुछ वो मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। जैसे सोफिया है, अभी ये भी हमारी जनरेशन टू जनरेशन चलेगा। इस टाइप से हमने जो है झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई थी, उनके किस्से सुन के हम आगे बढ़े हैं। तो मेरे अंदर सोफिया के अंदर एक्चुअली हमारी फैमिली में वो रन करता है ब्लड के अंदर। तो जब सोफिया को मैंने देखा तो वो मुझे झांसी की रानी से कम नहीं लगी थी, ऐसा लगा था कि झांसी की रानी वापिस से आ गई है। तो जब सोफिया का जैसी एंट्री स्टार्ट हुई आर्मी की, उस टाइम सोफिया जो है वो कुछ टाइम बाद हमें पता लगा तो सोफिया पीएचडी कर रही थी। उसने जो है फॉर्म फिल किया, मेरा नहीं हुआ, फिर सोफिया ने, मेरी सिस्टर ने फॉर्म फिल किया उसका, एसएसबी जो इसने क्लियर कर लिया। और क्लियर करते साथ ही उसके पास ऑप्शन थे, वो पीएचडी कर रही थी, वो चाहती तो अमेरिका जा सकती थी। उसके बहुत सारे उसके साथ वाले जो लोग हैं वो अमेरिका में रिसर्च कर रहे हैं, कोई अलग अलग कंट्रीज में, इंडिया में सर्व कर रहे हैं, अलग अलग तरह एज ए साइंटिस्ट बहुत अलग अलग पोस्ट में ऑलरेडी है। लेकिन सोफिया ने सोचा नहीं, उसने पीएचडी में वो बहुत ज्यादा अच्छा कर रही थी। मुझे पता है, मैं उसके हर एक पल में, हर एक चीज में उसके साथ थी, मुझे पता अच्छे से याद है। वो चाहती तो पीएचडी पूरी करके रिसर्च करके बाहर भी जा सकती थी, बस ऐसा नहीं किया। उसने अपनी कंट्री को डीआरडीओ के थ्रू नहीं, लेकिन उसने अपनी कंट्री को आर्मी ज्वाइन करके सर्व किया ऑन द मोमेंट। जैसे ही उसका सिलेक्शन, उसने अपनी पीएचडी छोड़ दी, जो लोग अक्सर नहीं छोड़ते हैं। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको आर्मी में जाना था। मुझे लगता है हमारा ब्लड ही ऐसा है। You have patriotism, you have courage, and you have love for the nation in your very blood, in your very DNA. Thank you so much. It has been a pleasure for having you join us here on the show. Shaina Qureshi, of course, the sister, the twin sister of Colonel Sophia Qureshi, and explaining to us the emotions that you feel, not just today when you showered flower petals on the Prime Minister and put your hand to the heart and waved at him, but the whole of India today salutes you, your sister, as well, for the sacrifices you've made for the nation.
Well, here on Times Now, there are others too we have reached out. This is what Colonel Qureshi's father, mother as well as brother had to say after the roadshow that they participated in today as they waved to Prime Minister Modi. Listen into them. आपको पहचान लिया था मोदी जी ने? हाँ, उन्होंने पहचान करके तो प्रणाम किया है। अच्छा, फिर आपने क्या किया? हमने प्रणाम किया उनको, राष्ट्रपति देश के प्रधान है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हार्दिक अभिनंदन, बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से आपकी बेटी ने जिस तरीके से आतंकवाद को एक जवाब दिया है और जब वो आतंकवाद के जवाब का चेहरा बनी है पूरे देश में, उसके लिए कितना गर्व महसूस कर रही हैं आप? उसके लिए तो बहुत खुशी है। आगे भी हम तो बोलते हैं कि और भी हमारे देश की बेटियां जो है उनको पढ़ाना चाहिए, आगे करना चाहिए ताकि वो भी इसी तरह से बने। और बेटी बेटों में कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसे होना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहला हाथ हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि जिन्होंने मौका दिया, और नो डाउट कि जब औरतों के साथ जो गलत हुआ है उसका बदला एक औरत ले, उससे बेहतर कोई मोमेंट नहीं है। इट्स सलाम है हमारी फोर्सेस को कि उन्होंने एटलीस्ट आज वो बता दिया उन दुश्मनों को कि यहाँ की औरतें किसी मर्दों से कम नहीं है। Well, clearly, courage and patriotism is running in the blood of Colonel Sophia Qureshi. That was her family, which is testimony to that. Well, with that, a short break. Don't go anywhere. We'll return in 2 minutes right here on Blueprint Explosive Exclusive.